السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ غزہ کے تعلق سے بھی کئی سارے اپڈیٹ نکل کر سامنے آئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا کس طریقے کا شرمناک بیان سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے، اور حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان کس طریقے کی جھڑپیں جاری ہیں وہ آپ کو سنائیں گے۔ کیا تازہ اپڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہندوستان سے بھی کئی ساری اہم خبریں ہیں۔ کامیڈین شام رنگیلا جو کہ وزیر اعظم مودی کے خلاف الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی کچھ نئے اپڈیٹ نکل کر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے بھی کچھ ویڈیوز جاری کیے ہیں، وہ اب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اس پر بھی بات کریں گے، اور بھی کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو ناظرین، بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ اسرائیلی فوج نے غزہ اور رفح میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے حملوں میں جاں بحق ہونے والے 63 افراد کی لاشوں اور 114 زخمیوں کو اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ رفح میں اقوام متحدہ کی گاڑی پر بھی اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے عملے کے ہندوستانی ملازم کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اس کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والے اسرائیلی فوج کے حملوں میں جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد بڑھ کر 35,100 سے تجاوز کر چکی ہے۔ وہیں دوسری جانب غیر قانونی یہودی آباد کاروں کی جانب سے جو فلسطینیوں کے لیے جو امداد جا رہی تھی، اس کے ٹرکوں پر حملہ کر دیا گیا ہے اور اس کے تمام سامان کو پھینک کر اسے ضائع کر دیا گیا ہے۔ انہیں فاقہ کشی کا شکار فلسطینیوں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ وہیں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بھی اسرائیلی فوج نے بمباری کی ہے، جس میں بچوں سمیت کئی فلسطینی پھر سے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ وہیں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کا کہنا ہے کہ غزہ میں کوئی بھی علاقہ اب محفوظ نہیں ہے، لیکن ان سب کے درمیان جو ہے امریکہ کا ایک اور شرمناک بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسے غزہ میں نسل کشی ہونے کا یقین نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے ایک میڈیا بریفنگ میں کہا کہ امریکہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، تاہم اسرائیل کو فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ امریکی مشیر نے امن کی ذمہ داری حماس پر ہی عائد کر دی اور کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن حماس کی شکست چاہتے ہیں، تاہم انہیں فلسطینیوں کی تکلیف کا احساس ہے۔ یعنی 35,000 سے زائد فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں افراد جو ہے وہ زخمی ہیں، اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ وہاں نسل کشی اسرائیل کی جانب سے نہیں ہو رہی ہے۔ امریکہ کی طرف سے اس طرح کا بیان کوئی حیران کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ خود امریکہ نے جو ہتھیار اسرائیل کو فراہم کیے، اسی کے ذریعے یہ ہزاروں فلسطینی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اور اب بھی امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے۔ وہیں دوسری جانب جو ہے فلسطینی مزاحمتی گروپوں کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپوں میں 50 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے ڈرون حملوں سے اسرائیلی ٹینک کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ فلسطینی مسلح گروپوں کا کہنا ہے کہ ان کا جو آج کا جو حملہ ہے وہ اب تک کا، یعنی کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے، جس میں کئی 50 سے زائد جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اور مصر کے بعد مالدیپ نے بھی جنوبی افریقہ کے ICJ میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ مالدیپ کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی عدالت انصاف یعنی کہ ICJ میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے دائر کردہ مقدمے میں باضابطہ طور پر شامل ہو جائے گی، جس میں اسرائیل پر غزہ کی پٹی میں نسل کشی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے میں گزشتہ دنوں مصر نے جنوبی افریقہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے جنوری میں اسرائیل کے خلاف ایک مقدمہ ICJ میں پیش کیا تھا، جس میں اس ملک پر غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ سہیوگ کیجیے، آپ کا پورا نامنکن ہوگا۔ جیسے ہی 3 بجے گیٹ بند ہو گیا، بول دیا کہ آپ جائیے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لوکتنتر کی ہتیا ہوتے دیکھی ہے، ہتیا ہو ہی رہی ہے۔ کامیڈین اور وزیر اعظم مودی کی میمکری کے ذریعے شہرت پانے والے شام رنگیلا نے وزیر اعظم مودی کے خلاف بنارس سے امیدوار وہ بننا چاہ رہے تھے۔ گزشتہ دنوں سورت اندور میں جس طریقے سے بنا الیکشن لڑے ہی BJP نے جمہوریت کا جس طریقے سے مذاق اڑاتے ہوئے جیت حاصل کی تھی، کہیں بنارس میں بھی اسی طرح نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی بنارس سے جو ہے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کریں گے۔ کل سے وہ
लगातार वीडियोस के ज़रिए जानकारी दे रहे हैं कि उन्हें पर्चे नामजदगी दाखिल करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने इंतज़ामिया पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए। कल उन्होंने बताया कि पूरा दिन वो लाइन में खड़े रहे लेकिन उन्हें पर्चे नामजदगी दाखिल करने नहीं दिया गया। आज भी सुबह उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कई सारी बातें आवाम के सामने रखी हैं। क्या यहाँ पे दो भागों में बंटा हुआ है, एक तो उनके लिए जिनका नॉमिनेशन इन्होंने लेना है, इनको पहले ही पता है इनका नॉमिनेशन लेना है, उनके लिए प्रोसीजर अलग है, और एक हमारा प्रोसीजर है जो इनको लाइन में लगाना है और इनका नहीं लेना है, किसी भी तरीके से नहीं लेना है। कल तरीका इतना खतरनाक देखा है, पूरे देश ने देखा है, अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, कुछ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, नहीं तो मैं वो मंजर दिखाता, वो हाल दिखाता कि क्या हाल अंदर हो रखा है। और आज भी हम आए हुए हैं तो आज भी यही सीन है पूरा। बहरहाल ये हाल है मुल्क की जमहूरियत का। वज़ीर आज़म तो खुद डरो मत वाले बयानात जारी करते हैं लेकिन एक कॉमेडियन को अपने ख़िलाफ़ खड़ा होता वो देख नहीं पा रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में गुज़िश्ता रोज़ आंधी तूफ़ान के दरमियान एक बड़ा होर्डिंग गिरने से जान गंवाने वाले अफराद की तादाद वो जो है बढ़कर 14 हो गई है। हादसे में कम से कम 74 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक NDRF की टीमों ने होर्डिंग के नीचे फंसे लोगों को बचाने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हुकाम का कहना है कि ये होर्डिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इजाज़त के बगैर नस्ब किए गए थे। ये होर्डिंग पंत नगर में हाईवे के किनारे वाक़ एक पेट्रोल पंप पर गिरा जहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। ये होर्डिंग तकरीबन 17,040 मुरब्बा फीट साइज़ का था और उसका जिक्र लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी सबसे बड़े बिलबोर्ड के तौर पर किया गया था। बिलबोर्ड बनाने वाली एजेंसी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है जिसके बाद BMC ने FIR दर्ज कराई है। वहीं महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने हादसा पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रकम का ऐलान भी किया और कहा कि ज़ख्मियों के इलाज के अखराजात रियासती हुकूमत ही बर्दाश्त करेगी। काशी मथुरा और दीगर तारीख़ी मसाजिद के बाद अब एक और मस्जिद निशाने पर है। अजमेर की एक तारीख़ी और मारूफ कदीम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा अब शरपसंदों के निशाने पर आ गया है। जैन पैरोकारों ने यहाँ कदीम जैन मंदिर होने का दावा करते हुए मथुरा और काशी के मसाजिद की तरह उसका भी सर्वे कराने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में चंद जैन पैरोकारों ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का दौरा किया और वहाँ संस्कृत स्कूल और कदीम मंदिर के आसार होने के दावे कर दिए। अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने हफ्ते को भी दावा किया कि इस अहाते में एक जैन मंदिर है और तबाहशुदा मुजस्समों के बाक़ियात भी मिले हैं। इस यादगार के पीछे एक तवील और काफ़ी मुतनाज़ा तारीख़ होने का दावा भी किया जाता है। ये जो मस्जिद बनाई गई है ये अफ़गान हुक्मरान मोहम्मद गौरी के दौर में बनाई गई थी। वादरे की एक रिवायत है कि मस्जिद का एक हिस्सा जो है 2.5 दिन में बन गया था, इसीलिए उसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ गया था। ये मस्जिद हिंदुस्तान की कदीम तरीन मस्जिदों में से एक है और ये अजमेर की कदीम तरीन यादगार भी है। 1192 ईस्वी में ऐबक की तरफ से शुरू की गई थी और हरात के अबू बकर ने उसे डिज़ाइन किया था। ये हिंद इस्लामी फ़न तामीर की अक्कासी भी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को एक अहम कदम उठाते हुए मुबैना अराजी घोटाले से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा और साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चैलेंज देने वाली अर्जी पर ED को 17 मई तक जवाब देने को कहा है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शुरू में इस मामले की समाअत 20 मई के लिए फहरिस्त बंद की थी, लेकिन सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे में लोकसभा इंतखाबात ख़त्म हो जाएगा। अगर इस मामले में तवील तारीख दी गई तो वो हेमंत सोरेन वो तासुब का शिकार होंगे और इस दलील को पेश नज़र रखते हुए अदालत उस्मा ने मामले की समाअत के लिए 17 मई की तारीख मुकर्रर की है। इसी तारीख को ED से जवाब भी मांगा गया है। वहीं एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सोरेन की तरफ से दलील पेश करते हुए बेंच को बताया कि मेरा मामला भी अरविंद केजरीवाल के हुक्म से मुशाबहत रखता है, मुझे भी इंतखाबी तशहीर के लिए ज़मानत की ज़रूरत है। बेंच ने कहा कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा काम है और बहुत से मामला जो है वो फहरिस्त बंद हैं। अदालत उस्मा ने तारीख को 20 मई से पहले करने पर रजामंदी जाहिर नहीं की, लेकिन कपिल सिब्बल और सीनियर वकीला ने गुजारिश की, जिसके बाद समाअत की तारीख को बदलकर 17 मई कर दिया गया है। बेंच ने कहा कि हमें नहीं पता कि मामले पर समाअत होगी या नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे 17 मई के लिए फहरिस्त बंद कर रहे हैं। बता दें कि गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इंतखाबी तशहीर के लिए ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था और उन्हें 1 जून को खुद सुपुर्दगी का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। वहीं इसी को अब सामने रखते हुए अब हेमंत सोरेन को भी ज़मानत देने का मुतालबा उनके वकला की तरफ से किया गया है। उस संदेश खाली में ज़मीन पर कब्ज़ा, ख़वातीन के जिनसी इस्तेहसाल और महीनों कबल ED की टीम पर हमले के बाद से पैदा होने वाले हालात ने इस केस को पेचीदा से पेचीदा तर बना दिया है।
स्टिंग वीडियो के हवाले से जिनमें जिनसी ज़्यादती का शिकार ख़वातीन ने इस तरह के किसी भी मामले की तरदीद की है और बीजेपी लीडरों पर वाइट पेपर पर दस्तखत करवाने का इल्ज़ाम लगाया है, तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को पूरी तरह से घेर लिया है, जबकि बीजेपी की जानिब से उन वीडियोज़ को यानी कि स्टिंग वीडियोज़ को फर्जी करार दिया जा रहा है और वो तृणमूल कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ख़वातीन को इल्ज़ाम वापस लेने पर मजबूर किया जा रहा है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। उधर ये भी खबरें आ रही हैं कि संदेश खाली की ख़वातीन ने इतवार को तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और उन पर उनका फर्जी वीडियो बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी जानिब ये भी इत्तलात हैं कि पीर को सीबीआई की टीम संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले के मामलात की जांच करने के लिए मज़कूरा इलाके का वो दौरा करने पहुंची और शाहजहां शेख के खिलाफ शिकायत करने वाले संजय मंडल के घर पर जाकर पूछताछ भी की है। वादरे के शाहजहां शेख इन मामलात में कलीदी मुलजिम है और फिलहाल पुलिस की हिरासत में। वादरे की संदेश खाली केस में तृणमूल कांग्रेस 2 वीडियो जारी कर चुकी है, जिनमें से एक वीडियो में कुछ ख़वातीन को दिखाया गया है जिनका कहना था कि बीजेपी लीडर ने उनसे वाइट पेपर पर दस्तखत करवाए थे और उस पर जिनसी ज़्यादती की कहानी लिख दी, जिसका इल्म उन्हें बाद में हुआ, जबकि उन्होंने ये इल्ज़ामात उन पर नहीं लगाए थे। तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की सरबराह रेखा शर्मा के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है और उन पर ख़वातीन को डराने धमकाने, फ़रेबदही और जालसाजी की साजिश में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के चौथे मरहले के लिए वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। पिछले 4 मरहलों के लिए इंतखाबी तशहीर के दौरान मुतअद्दिद रहनुमाओं, ख़ासतौर पर बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से इश्तिआल अंगेज़ और फ़िरक़ा वाराना बयानबाजी की गई है। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी मुतअद्दिद तकरीरों में मुसलमानों को मुसलसल निशाना बनाया है। हैरत अंगेज़ तौर पर इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बनी हुई है। चौथे मरहले की पोलिंग के दौरान भी मुतअद्दिद मकामात पर बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से धांधली की गई। लखीमपुर खीरी और दीगर मकामात पर वोटिंग के दौरान राय दहिंदगान ने मशीन में ख़राबी की शिकायत भी की। वोटिंग के दौरान किसी और को वोट दिया गया और पर्ची बीजेपी की निकली, इस तरह का भी इल्ज़ाम आयद किया गया, मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस सिलसिले में कोई संजीदा कार्रवाई नहीं हुई है। चुनांचे इलेक्शन कमीशन की जानिबदाराना रवैये के ख़िलाफ़ लोगों में नाराज़गी है। वहीं सिविल सोसाइटी ने उसके खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ ग्रो ए स्पाइन और रिज़ाइन इस तरह की मुहिम शुरू की है। सिविल सोसाइटी के लोगों ने हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज दर्ज किया। वादरे के लोकसभा इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन को शदीद तनक़ीद का सामना है। इल्ज़ाम है कि अपोजिशन लीडरों और अपोजिशन जमातों की शिकायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने हुक्मरान जमात की किसी रहनुमा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। वहीं बीजेपी लीडरों के ज़रिए नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्ज़ी दायर की गई है और जल्द समाअत का मुतालबा किया गया है। वहीं इसी तरह की एक और शिकायत कल दिल्ली हाई कोर्ट में भी पेश की गई थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाने वाली उनकी मुबैना नफरत अंगेज़ तकरीर पर FIR दर्ज करने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला इलेक्शन कमीशन के पास ज़ेर इल्तिवा है, जो कि कानून के मुताबिक शिकायत पर आज़ादाना राय देगा। अदालत ने कहा कि ये तस्वुर नहीं किया जा सकता कि पोल पैनल, जो अभी तक इस मामले पर गौर कर रहा है, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो नाज़रीन, इतनी खबरें, मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।